کینیڈا کے ایک پوش علاقے میں واقع ایک بنگلے میں پارٹی زوروں شور سے جاری تھی۔ یہ لے، واٹسن نے اس کی طرف وائن کا گلاس بڑھایا۔ تم جانتے ہو عرصہ ہوا میں نے پینی چھوڑ دی ہے، وہ بیزار شکل بنائے بولا۔ ایک دن پینے سے کچھ نہیں ہوتا، واٹسن نے اصرار کیا۔ جب میں نے کہا نا تو نہیں تو پھر نہیں، اگر تم نے زیادہ اصرار کیا تو میں یہاں سے ہی چلا جاؤں گا، اس نے ساقلیجے میں دھمکی دی تھی۔ اوکے، نہیں کہتا، نہیں پینا چاہتے تو نہ پیو، لیکن کم از کم راہ سے کر لو۔ پارٹی میں موجود آدھی سے زیادہ لڑکیوں نے تم پہ نظر رکھی ہوئی ہے، پر تم برف کے آدمی بنے کسی کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے۔ میں نے تمہارا دل بہلانے کے لیے تمہیں اس پارٹی میں بلایا تھا، نہ کہ منہ بنا کر ایک جگہ کھڑا رہنے کے لیے۔ واٹسن اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ تم جانتے ہو کہ میں یہ سب چھوڑ چکا ہوں، لیکن صرف تمہاری خاطر یہاں آیا ہوں، اس لیے مجھے کسی چیز کے لیے فورس مت کرو، اور میری تو فکر تم بالکل مت کرو۔ تم جاؤ اپنی پارٹی انجوائے کرو، اس نے کہا۔ تبھی اس کی نظر سامنے موجود ایک لڑکی پہ پڑی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اتری تھی۔ لڑکی کی اس کی طرف پشتے کمر تک آتے بالوں کی پونی ٹیل بنائے وہ فل سیاہ میکسی میں ملوث تھی۔ اچھا آئٹم ہے اور تمہارے ٹائپ کی بھی ہے، میرے دوست کی دوست ہے، اگر تم کہو تو میں تمہارا تعارف کروں، واٹسن نے نظروں کی تعاقب میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ شٹ اپ، وہ اس لڑکی سے نظریں ہٹا کر ناگواری سے بولا۔ ارے یار شرماؤ مت، کافی عرصہ ہو گیا، تم نے کبھی کسی لڑکی کو اٹھا کر ہی نہیں دیکھا، اور اس لڑکی کو تم نے تو نظر بھر کے دیکھا ہے، یقیناً تمہیں کچھ تو اس لڑکی میں نظر آیا ہوگا، واٹسن مسکرا کر بولا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، بس میری اچانک اس پہ نظر پڑ گئی، اور میں حیران ہو رہا ہوں کہ پوری پارٹی میں یہ واحد لڑکی ہے جس نے قابل قبول لباس پہنا ہوا ہے۔ اس نے دوسری طرف دیکھ کر وضاحت دی۔ چلو پھر اس کی شکل بھی دیکھ لو، پوری پارٹی میں اس جیسی کوئی بھی نہیں، واٹسن اس کا رخ اس لڑکی کی طرف پھیرتے ہوئے بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ واٹسن کا ہاتھ جھٹکتا، اس کی نظر گہرائی طور پر سامنے اٹھی اور پھر پلٹنا ہی بھول گئی تھی۔ اسے لگا کسی نے وائن کی پوری بوتل اس کے سر پر انڈیل دی ہو۔ یہ ناممکن ہے، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے گھبرا کر بولا۔ اس کے سفید ماتھے میں پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ واٹسن اس کی حالت پہ حیران ہو رہا ہوتا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ زوروں شور سے سر کو نفی میں ہلا کر بول رہا تھا۔ پھر وہ ایک دم سے اٹھا اور لوگوں کو چیختا اس لڑکی تک پہنچا جو ابھی تک کسی لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر کچھ کہہ رہی تھی۔ لڑکی کی اس کی طرف پشتی، اس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ لڑکی کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت اتری اور دوسری لمحے اس کے چہرے پر نندھیا مسکراہٹ آئی تھی۔ ارے واہ، آج تو میرے بھاگ جاگ اٹھے، اتنے عرصے بعد میرا ڈیئر ہسبینڈ مجھے ملاقات کا شرف بخش رہا ہے۔ وہ فضائیہ انداز میں گویا ہوئی تھی، اس کے چہرے پر زلزلے کے تاثرات نمایاں ہو رہے تھے۔ گلی کے نکڑ پر بنے ایک چھوٹے سے مکان پہ لائٹنگ کی گئی تھی۔ مکان کی چھت پر لگے بڑے سے بورڈ پہ لکھا تھا شادی مبارک، جگمگا رہا تھا۔ گھر سے ڈھولک اور گانوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ سامنے والے کمرے سے لڑکیوں کے کہکوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ عالم نے پوری سین پہ ایک تارے نظر ڈالی، اسٹیج بن چکا تھا اور کرسیوں کی سیٹنگ بھی ہو چکی تھی۔ آج اس کے اکلوتے دوست کبیر کی بہن ہینا کی مہندی تھی۔ صبح سے وہ کبیر کے ساتھ لگا تھا۔ کبیر تیار ہونے اپنے کمرے میں گیا تھا اور اسے بھی یہی کہا تھا کہ وہ بھی آ کر تیار ہو لے، کیونکہ ہینا کے سسرال والے مہندی لگانے کے لیے پہنچنے والے ہیں۔ وہ گھر کے اندر آیا تو سامنے والے کمرے کے دروازے پہ ایک لڑکی کو روتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ شاید کبیر کی کوئی کزن تھی، کیونکہ اس کی بہنوں سے تو وہ واقف تھا۔ اس نے سوچا کہ اس لڑکی کو نظر انداز کر کے کبیر کے پاس جائے، لیکن وہ اسے نظر انداز نہیں کر پایا۔ لڑکی کی رنگت سفید تھی، چہرہ بیج بھی تھا، جس پہ سیاہ بڑی بڑی آنکھیں تھیں جو آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ آنکھ پہ چھوٹے سے کٹ کا نشان تھا۔ اس کے چہرے پہ سب سے خوبصورت چیز اس کی ٹھوڑی پہ موجود گلا تل تھا۔ لڑکی پیلے رنگ کے لباس میں ڈھپی تھی اور سوٹ کے ہم رنگ دوپٹے سے سر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے جھجک کر پوچھا۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں لڑکی اس کی بے عزتی نہ کر دے۔ میرا جوتا گم ہو گیا ہے، وہ سوسو کرتے بولی۔ عالم نے آنکھیں پھاڑ کر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو اتنی بڑی ہو کر جوتے کے نیے رو رہی تھی۔ آپ ڈھونڈے، ادھر ہی ہوگا، اس نے کہا۔ ان جوتوں میں وہ موجود نہیں ہے، وہ نفی میں سر ہلا کر زمین پر پڑے جوتوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ تو کسی اور جگہ دیکھ لیں، اس نے مشورہ دیا۔ نہ ملا تو پھر، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ تو کوئی بات نہیں، کبیر کی کسی بہن سے جوتا لے کر گھر چلی جائیے گا، اس کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود تھا۔ گوچی کے جوتے تھے، اگر نہ ملے تو امی نے میری بہت بے عزتی کرنی ہے کہ تم تو برانڈ کے قابل ہی نہیں ہو۔ اس کے پھر آنسو بہنے لگے تھے۔ عالم کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر اس لڑکی کے پاؤں پر ڈالی۔ اس نے دائیں پاؤں میں بلیک کلر کا خصہ ڈالا ہوتا جس پہ ملٹی کلر کا ڈیزائن بنا تھا۔ ایسے ہی خصہ اس نے برآمدے کے دروازے کے پاس بھی دیکھا تھا۔ آپ میرے ساتھ آئے، عالم نے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولی۔ آپ کا خصہ برآمدے کے دروازے کے پاس پڑا ہے۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت دی۔ آپ مجھے یہاں لا دیں، میں ننگے پیر وہاں کسے جاؤں گی؟ اس نے کہا۔ میں کسی کے جوتوں کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ عالم کی بھوری بھوری آنکھوں میں ناگواری اتر آئی تھی۔ ارے بھائی، آپ تو برا مان گئی، میرا وہ مطلب نہیں تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ وہ جلدی سے بولی۔ واٹ بھائی؟ حیرت کے مارے اس کی آواز اونچی ہوئی تھی۔ پہلی نظر میں وہ لڑکی سے اچھی لگی تھی اور وہ اسے۔ کیا ہوا؟ کچھ غلط کہہ دیا میں نے؟ وہ پریشان ہوئی۔ میں آپ کا بھائی نہیں ہوں، ایک تو میں نے آپ کی مدد کی اور اوپر سے آپ ایسے کہہ رہی ہیں۔ وہ تیز لہجے میں کہہ کر کبیر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تو بھائی، آج کل کے لڑکوں کو بھائی کر دو تو ایسا رد عمل دکھا دیں جیسے گالی دے دی ہو۔ اریہ نے منہ بنا کر کہا، پھر ایک پاؤں پر اچھلتی برآمدے کے دروازے تک آئی اور خصہ اپنے پیروں میں ڈالا۔
सभी मार्बल के बने इस बड़े से बंगले में बावर्ची मुलाजिम अपने अपने कामों में मशगूल थे। अमेरिकन तर्ज पे अपने किचन से नाश्ते की इश्तिहा अंगेज खुशबू आ रही थी। ब्लैक जम ड्रेस में मुलव्वस सुमित लगार अपने जिम से बाहर निकला। सिल्वर शर्ट की वजह से उसकी कसरत से बाजू नुमायां हो रहे थे। जिम के दरवाजे पे खड़े बावर्ची मुलाजिम ने फौरन से उसे टॉवल पेश किया। उसने अपने सफेद चेहरे और बाजू पे जिगरा टॉवल मुलाजिम को पकड़ाकर किचन में दाखिल हुआ। किचन में मौजूद शेफ उसे देखकर थोड़ा घबराए थे। सुमित के गुस्से से सबकी ही जान जाती थी। ये ऑरेंज जूस क्यों बनाया है? वो काउंटर पर पड़े ऑरेंज जूस के जग की तरफ इशारा करके बोला। वो रुमिसा मैडम ने कहा था। उमर शेफ अमीर घबरा कर बोला। जब मैंने कहा था आज के नाश्ते में ऑरेंज जूस नहीं होगा तो क्यों बनाया? वो गुस्से से दौड़ा। वो रुमिसा मैडम दरमियानी उम्र का शेफ जिसका नाम था एक तो मिलना होगा। ये मेरा घर है, तुम्हारी रुमिसा मैडम का नहीं। तुम्हारे पास 2 मिनट है, या तो इस जूस को खुद पीकर खत्म कर दो या इसे जाया कर दो। डाइनिंग टेबल पर ये मुझे जूस नजर ना आए। गुस्से से लाल होती आंखों के साथ उसने कहा था। सुमित क्या मसला है? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? ब्लैक सिल्क की नाइटी में मुलव्वस रुमिसा अंदर दाखिल हो तो बोली, मैंने क्या कहा है तुम लोगों ने सुना नहीं? वो अपनी तो तेरी माँ को कतई नजर अंदाज करके था तो आमिर से सरलेजे में बोला था। वो दोनों परेशान हो गए कि छोटे साहब की बात मानी या बेगम साहब की। इसी बकवास की तो 24 घंटे ही जारी रहती है। नाश्ता बन गया है तो टेबल पे लगा दो। वो सुमित को तेज नजरों से घूरते हुए बोली थी। ये जूस मुझे डाइनिंग टेबल पर नजर आया तो तुम दोनों की खैर नहीं। उसने उंगली उठाकर धमकी दी। और दिमाग जगह पे है? क्या बकवास कर रहे हो? ये जूस मैंने अपने लिए बनवाया है, तुम्हें नहीं पीना तो मत पियो। रुमिसा गुस्से से बोली, ये घर मेरा है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से बोला, मेरा ख्याल है आज से ही तुम्हें इशू बनाने के लिए ये नया मौजू मिला है। तुम थकते नहीं हो ऐसी हरकतें कर करके, और इन नाकाम हरकतों का आज तक कोई फायदा हुआ है तुम्हें? पिछले 12 सालों से तुम मुझे इस घर से निकालने की कोशिश कर रहे हो लेकिन हमेशा नाकाम ठहरे हो। अब ये भी कर लो, अगर कामयाब हुए तो मेरी तरफ से इनाम के हकदार पाओगे। रुमिसा इंतज़ारी अंदाज में कह रही थी। और तुम जो पिछले 12 सालों से मुझे यहाँ से निकालने के लिए ड्रामे कर रही हो, आज तक तुम्हारा हर ड्रामा फ्लॉप गया है। मैं तो इस घर में हूँ और हमेशा ही रहूंगा। वो मजबूत लहजे में कह रहा था। तुम्हारी माँ को निकलवा दिया था, फिक्र मत करो, तुम्हें भी निकलवा कर ही दम लूंगी। रुमिसा ने उसका मजाक उड़ाया। तुम्हारी बेटी को तो मैंने भी इस घर से निकलवा दिया था, तो एक दिन मैं भी तुम्हें निकलवा दूंगा यहाँ से। माँ के जिक्र पर वो भड़का था। आमिर और जाहिद के लिए ये तमाशा नया नहीं था, बल्कि किसी भी मुलाजिम के लिए ये नया नहीं था। तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन ये तमाशा लगता रहता था। देख लेंगे, मेरा दिमाग मत खाओ, जाकर नाश्ता खाओ। वो नगवाल लहजे में बोली। ये ऑरेंज जूस अभी तक यहाँ मौजूद है। वो जब को देखकर गुस्से से बोला, छोटे साहब का दिमाग खराब हो गया है। आमिर इस तरह करो, इसे गिलास ठंडा ठंडा जूस पिलाओ ताकि अकल ठिकाने आए इसकी। रुमिसा तंजिया लहजे में बोली। आमिर परेशान खड़ा था, किसकी बात माने और किसकी ना माने। सुमित कुछ भी कहे बगैर आगे बढ़ा और जब को पकड़कर फिर जोर से जमीन पर दे मारा। मार्बल का फर्श नारंगी जूस से नारंगी हो चुका था और पूरे फर्श पर कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। अब चाट ले, मेरा मतलब है कि पी ले। वो सर्दी लहजे में हक्का बक्का करी। रुमिसा से बोला, फिर जाहिद से मुखातिब हुआ, मुझे 2 मिनट के अंदर मेरा नाश्ता मेरे कमरे में चाहिए। रुमिसा ने तन मिलाकर किचन से बाहर जाते सुमित को देखा। दिल का था कि इस बदतमीज लड़के का सर फाड़ दें, लेकिन शौहर की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकती थी, बल्कि वो सुमित के खिलाफ कभी भी कोई भी एक्शन नहीं ले सकती थी। आज ही की बराती आलम 2 मिनट से नोट कर रहा था। वो जिधर जा रहा था इस दिन वाली लड़की इसके पीछे पीछे आ रही थी। अब क्या मसला है? क्या फिर आपका जूता खो गया? वो अचानक से उसकी तरफ पलट कर बोला था। अरे जो इसके पीछे पीछे चल रही थी सटपटाकर एकदम पीछे हटी। वो मेरा झुमका। वो सटपटाकर बोली, क्या मतलब? आपने मुझे क्या खोजी समझ रखा? जो भी चीज़ गुम होगी मैं इसे तलाश करके आपको दूंगा। पता नहीं वो क्यों इस पर बिगड़ा था। शायद भाई कहने वाली बात याद आ गई थी। मैंने ये तो नहीं कहा। नफी में सर हिलाकर बोली, नहीं तो फिर इस तरह मेरे पीछे आने का मकसद क्या था? इसने जुरा की। अभी आप किचन में आए थे तब मैं जमीन पे बैठी अपना झुमका ढूंढ रही थी। शायद आपकी नजर मुझ पे नहीं गई, लेकिन मैंने देख लिया था कि आपने मेरे झुमके पे पाँव रख दिया और वो आपकी जूती के साथ चिपट गया, इसलिए मैं आपके पीछे आ रही थी। उसने जल्दी जल्दी पूरी बात बताई। आलम ने उसकी बात पे हैरान होते बाहर पाँव ऊपर उठा। वाकई नीचे झुमका लगा हुआ था जो पहनने के काबिल नहीं रहा था। जब इसने झुमका लड़की की तरफ बढ़ाया तो वो रोने वाली हो रही थी। क्या ये भी किसी ब्रांड का था? उसने जरा हमदर्दी पूछा। नहीं, ये तो मैंने पूरे 250 रुपये के खरीदे थे। वो रोहन से होकर बोली। तो फिर रो क्यों रही हो? वो हैरत से भरपूर लहजे में बोला। क्या चीज़ थी ये लड़की? दुकानदार के पास ये आखिरी जोड़ी थी। मैंने पहली दफ़ा झुमके पहने थे ये, और बेचारे के साथ ये सलूक हो गया। अब मैं इसे झुमके कहाँ से लाऊंगी? अरे इन्हें रोना शुरू कर दिया था। आलम ने घबरा कर इधर उधर देखा। अभी मेहमान आना शुरू नहीं होते। अगर कोई इन दोनों को इस तरह देखता तो क्या सोचता? अच्छा आप रोए तो मत। उसने कहा, क्यों ना रो, मुझे जो चीज़ पसंद आती है वो मुझसे दूर चली जाती है। वो हिचकी लेती हुई बोली थी। इस लड़की की बात सुनकर वो सख्त परेशान हो गया था। अब वो इस मासूम सी लड़की को जो एक दिन में इसके दिल की मलका बन चुकी थी कि कैसे जिंदगी की हकीकत समझाए।
जिंदगी हमारी पसंद नापसंद नहीं देखती, वो नरम लहजे में कह रहा था। अजीत की बात सुनकर एकदम चुप हुई थी। उसने पहली बार इस लड़के पर गौर किया। गंदमी रंगत, ब्राउन आंखें, ब्राउन बाल वर्दी थी। जिसम लड़का अच्छा खासा हैंडसम था। तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? कबीर इन दोनों की तरफ आते हुए हैरान से बोला। क्या हुआ है अरिया, क्यों रो रही हो? कबीर अरिया को रोते हुए देखकर परेशान होता। कुछ नहीं कबीर भाई, वो मेरा झुमका टूट गया था। वो आंसू साफ करते हुए बोली। तुम कब बड़ी होगी? छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ दो, जाओ अंदर, तुम्हारी ममानी बुला रही है, कबीर ने कहा। अरिया ने असावत में सर हिलाते अंदर की तरफ बढ़ गई। एक बात पूछूं? कबीर ने आलम की तरफ देखकर कहा, जो बिना पल का झपका अरिया को जाते हुए देख रहा था। मैं जानता हूँ तुम क्या पूछने वाले हो, मुस्कुराकर बोला। तो फिर बिना मेरे सवाल के फौरन से पेश तो जवाब दे दो। कबीर चुटकी बजाकर बोला। पहली ही मुलाकात में मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। मैं हैरान हूँ कि मुझ जैसा शख्स इतनी जल्दी किसी की मोहब्बत में कैसे गिरफ्तार हो सकता है, वो भी एक ऐसी लड़की की जिसका मुझे नाम तक नहीं पता। वो कंधे उचकाकर हंसकर बोला, जिसे इसे भी अपनी मोहब्बत पर यकीन ना हो। और ये मेरे मरहूम चचा की बेटी है और बहुत अच्छी लड़की है। जैसे मुझे मेरी बहनें अजीज है, वैसे मुझे अरिया भी अजीज है। वो बहुत मासूम और भोली भाली लड़की है। मेरी नज़र में अरिया की खुशकिस्मती है कि इसे इतना अच्छा हमसफर मिलने वाला है। किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। कबीर मुस्कुराकर अपनी सुनबत पेश की थी। आलम ने जो मुस्कुराते हुए साबत में सर हिलाया। पहले तो ये सुनकर डर गया था कि अरिया कबीर की कजन है। इससे लगा कबीर किसी बात पर गुस्सा करेगा, लेकिन शुक्र है कि वो मुख्तलिफ सोच का मालिक था। सुमित से लगा रही और दुबे लगा रही डाइनिंग टेबल पे बैठे डिनर कर रहे थे। जब लड़का आता हुआ सुमित लाउंज में दाखिल हुआ, साथ में बाजू डाले एक रटन मानो लड़की भी मौजूद थी। हाय डैड, सुमित ने बंद होती आंखों को बेमुश्किल खोलते हुए कहा। ये क्या बेहूदगी है? सुमित दुबे लगा रही है ना तेज में आते हुए बोले। बेहूदगी नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है डैड। वो गेका लगाकर बेमुश्किल आंखें खोलते हुए बोला। शर्म नहीं आती है वाहियात हरकतें करते हुए? मम्मी से लगा रही गुस्से से बोली थी। मुझे शर्म कौन दिला रहा है जिसमें खुद शर्म नहीं? सुमित मौजूद साथ लड़की के हाथ पे हाथ मारकर मजाक उड़ाने वाली लहजे में बोला था। अपनी बकवास बंद करो। और तुम लड़की 2 सेकंड के अंदर अंदर यहाँ से चलती फिरती नजर हो। तुम्हें लगा रही तेज लहजे में बोले थे। मैंने आपकी जिंदगी में कभी मदाखलत नहीं की, तो आपको भी मेरी जिंदगी में मदाखलत करने का कोई हक नहीं। छोड़ो इन सबको, चलो डार्लिंग मेरे रूम में चलते हैं। वैसे इनको अपना नाम तो बताओ। बहुत खुली आंखों के साथ मौजूद लड़की को देखकर बोला गुल। लड़की मुस्कुराकर बोली, खबरदार जो तुम इस लड़की को लेकर बेडरूम में गए, इसे और तुम्हें इन दोनों को बाहर निकाल दूंगा मैं। तुम्हें लगारी ने कड़क लहजे में धमकी दी थी। ओह प्लीज डैड, मेरा टाइम वेस्ट मत करें। अपनी ये धमकियां आप अपने पास संभाल कर रखें, और अगर नहीं संभाली जा रही तो साथ कल अपनी बीवी को दे दीजिए, वो इसकी ज्यादा लायक है। चलो डार्लिंग, सुमित ने बेपरवाही से बाप को देखकर कहा और फिर गुल का हाथ पकड़े लड़खड़ाते हुए सीने चढ़ने लगा। सुबह लगा रही जो सुमित के पीछे जाना चाहते थे, रमीसा के कहने पर रुक गए। आपने देखा ये किस हद तक चला गया है। कल इसने जूस वाला ड्रामा किया और आज दिन को इसने फ्रिज से चिकन गायब कर दिया। आज चिकन नहीं बनेगा, और आज तो हद ही कर दी इसने। तवाइफ के चक्कर में पिछले 1 साल से पड़ा है और आज तो इसे घर ही उठा कर ले आया। देखिए ना, कल इसे निकाह भी कर लेगा, मैं आपको बता रही हूँ। जल्द ही ये आपको पूरे शहर में बदनाम करवा देगा। रमीसा लगा रही यकीन से बोली थी। क्या करूँ मैं, एक ही तो औलाद है और वो भी पता नहीं किस पे चली गई है। अगर ये मेरा अखलूता वारिस ना होता तो मैं इसको खींच के भी रखता। वो सर थामते हुए बोले थे। इसी वजह से तो ये सर पे चढ़ गया। इसे पता है कि आप इसे कुछ नहीं कहेंगे, बस इसीलिए ये हरकतें कर रहा है। एक बार इसे घर से निकालें, दूसरे दिन सीधा होकर खुद वापिस आ जाएगा। रमीसा लगा रही ने मशवरा देता। और अगर वो अपनी माँ के पास चला गया तो फिर क्या होगा? मैं तो खाली हाथ ले जाऊंगा ना। वो रमीसा की तरफ देखकर बोले थे। रमीसा लगा रही जब कुछ न किसी की दिलो ख्वाहिश थी कि सुमित अपनी माँ के पास चला जाए और इनकी जान छूट जाए। सुमित चाहता तभी वो अपनी बेटी यहाँ ला सकती थी। अरिया उठ जाओ, कॉलेज के लिए देर हो रही है। रुदाबा ने मुदहोश पड़ी अरिया को झुंझुरते कहा। मैं आज नहीं जा रही, हिना आपी की शादी ने बहुत थका दिया है, आज तो मैं आराम करूंगी। अरिया नींद की में डूबी आवाज गूंजी। कुछ शर्म करो, बारात और वलीमा में छुट्टी करने के बाद तुम आज फिर नहीं जाओगी। मैं भी पप्पो को फोन लगाती हूँ, तुम्हें आकर सीधा करेंगी। रुदाबा ने धमकी दी जो कारगर साबित हुई। आप अम्मी की कार्बन कॉपी हैं, मजा नहीं जो मुझे सुकून का सांस भी लेने दो। जो जाकर कैसे उठ खड़ी। रुदाबा ने मुस्कुरा के उसे देखा जो मुंह बसरती हुई वॉशरूम में जा रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकली तो यूनिफॉर्म में थी। वैसे आप हिना आपी की शादी पे क्यों नहीं आई? ताई अम्मी पूछ रही थी कि रुदाबा एक भी फंक्शन में नहीं है। छुट्टियां बनाते रहने गाउन पहनता। मैंने रुदाबा से कहा जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी वहाँ रुदाबा लेक्चरार थी। तुम कहती कि वो अब कॉलेज के अलावा कहीं नहीं जाती। रुदाबा उदासी से मुस्कुराकर बोली। मैंने कहा लेकिन उन्होंने कहा कि रुदाबा लोगों के साथ घुला मिला करे। पहले तो इसकी मजबूरी थी कि वो इद्दत में थी, लेकिन अब तो इद्दत खत्म हुए भी महीना हो गया है। अरिया ने बताया इद्दत तो खत्म हो ही गई है, लेकिन लोगों की बातें ही खत्म नहीं होती। रुदाबा तलखी से बोली थी। छुट्टियां में पोनी लगाते अरिया का हाथ एक लम्हे के नहीं समाता। इसे अफसोस हुआ इसने रुदाबा को माजी की क्यों याद दिलाई। लोग तो बातें ही बनाते रहते हैं, इनको आप दफा किया करें। क्या आपने मेरे लिए आलू वाला पराठा बनाया है? मैंने रात को फरमाइश की थी आपसे। वो रुदाबा के कंधे पर बाजू फैलाकर बोली थी।
उफ, तुमने बातों में मुझे भुला दिया। तुम्हें जगा कर मैं पराठा ही बनाने वाली थी। रुदाबा अपने माथे पर हाथ मारकर बोली, फिर गाउन उतार कर कुर्सी पे रखा और कमरे से बाहर चली गई। रुदाबा आप ही कितनी अच्छी हैं और कबीर भाई इनसे कितना प्यार करते हैं। काश रुदाबा आप ही और कबीर भाई की शादी हो जाए। अरिया ने खुद कलामी की थी। कबीर से उसे आलम याद आ गया, जिसकी नजरें सारे फंक्शन में उसे डिस्टर्ब करती रही थी। वो जहाँ भी जाती वहाँ आलम मौजूद होता। पहले तो उसने सोचा कि रुदाबा को बताए, फिर ये सोचकर रुक गई कि रुदाबा आप ही कहीं ये बात हिना आपी को ना बता दे और हिना आपी माइंड ना कर जाए, क्योंकि आलम इनके घर के फर्द की तरह था। हो सकता है कि मेरा वहम हो। शादी थी और सारे फंक्शन के इंतजाम देख रहा था। अगर वो लोफर या ऐसा वैसा होता तो कबीर भाई कभी भी उसे अपने घर में ना घुसने देते। उसने सजे टक्कर खुद कलामी की थी। अरे वाह, आज तो सुबह सुबह तुमने अपनी शक्ल दिखा दी। कबीर ने आलम को अपनी वर्कशॉप पे दाखिल होते देखकर हैरत से कहा, मुझे इस तरह कोई काम था तो सोचा तुमसे भी मिल लूं। वो कबीर की पेश की गई कुर्सी पर बैठते बोला, चाय पियोगे या नाश्ता मंगवाऊं? कबीर ने पास वाले कपड़े से हाथ पहुंचते हुआ सिर्फ चाय दरवाजे पर नजर जमा कर बोला, अभी वो कॉलेज जाने के लिए यहाँ से नहीं गुजरी। कबीर ने उसके पास बैठे सरगोशी की थी। किसकी बात कर रहे हो तुम? वो चोरी पकड़े जाने पर सर पटाकर बोला, जिसके लिए तुमने अपनी नींद की कुर्बानी दी है, वो भी एक नंबर का काया था। मैंने लहजे में बोला, तुम भी ना क्या बोलते हो? अरिया को गुजरते देखकर उसकी बात मुंह में ही रह गई। अरिया ने काले रंग की चादर लिपेट रखी थी और दाएं कंधे पर भूरे रंग का कॉलेज बैग था। पाँव में काले रंग के शूज थे। तभी अरिया ने वर्कशॉप की तरफ देखा। आलम ने उसके देखने पर भी नजरें नहीं हटाई थी। अरिया ने हैरत से उसे देखा, फिर रुदाबा का हाथ पकड़ लिया। रुदाबा को देखकर कबीर के चेहरे पर एक सियासत भरी मुस्कुराहट आई थी। चली गई है। उनके जाने के बाद कबीर ने उसके सामने हाथ लहराकर बोला, पता है? वो खिसियाकर बोला, आगे का सोचा है? फिर कब तुम अपना रिश्ता उसके घर भेज रहे हो? कबीर ने पूछा, पहले इसकी जज्बात तो पता चल जाए, फिर की बात आगे बढ़ सकती है। आलम ने जवाब दिया, अगर तुम कहो तो मैं हिना से कहकर अरिया की जज्बात का पता करूं। कबीर ने अपनी खदमात पेश की, वो तो मैं खुद कर लूंगा, और मेरा मशवरा ये है कि ये सब तुम अपने लिए करो। हिना के जरिए रुदाबा से बात करो और अपना रिश्ता भेजो। अगर इस दफा तुमने इसे खो दिया तो फिर हमेशा के लिए पछताओगे। आलम ने संजीदगी से कहा था, मैं पहले भी कबीर वर्कशॉप वाला था और आज भी वही हूँ। उसके वालिदैन अब भी एक ऐसे शख्स को अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देंगे जो मैट्रिक पास हो, जिसके पास एक बाइज्जत नौकरी के बजाय ये वर्कशॉप हो। कबीर इंतहाई तड़क लहजे में बोला था, लेकिन पहले की बात और थी और अब मामला मुख्तलिफ है। बेशक इसे तलाक हो गई है, लेकिन वो अब भी पहले की तरह पढ़ी लिखी और कॉलेज में लेक्चरर है। मेरा रिश्ता कभी जोड़ नहीं बन सकता। कबीर हकीकत पसंद बना था, लेकिन वो भी तो तुमसे मोहब्बत करती है। इसके लिए ना ये पहले बात अहम थी और ना अब अहम होगी। आलम ने उसे समझाना चाहा, लेकिन उसके वालिदैन के लिए अब भी अहम है। हिना की मेहंदी पे उसकी अम्मी मेरी अम्मी को कह रही थी कि अब भी रुदाबा के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते मौजूद हैं, लेकिन हम रुदाबा की शादी इस शख्स से करेंगे जो उसके काबिल होगा। और कबीर अहमद कभी भी रुदाबा के काबिल नहीं हो सकता। वो अफसरदा लहजे में बोला था, मेरी यही राय है कि तुम रुदाबा से बात करो। आलम ने कहा, छोड़ो यार, हर मोहब्बत के नसीब में खुशगवार अंजाम नहीं लिखा होता। कुछ मोहब्बतें अधूरी रह जाने के लिए बनी होती हैं। मेरी और रुदाबा की मोहब्बत भी ऐसी है। मेरी ये दुआ है कि तुम अपनी मोहब्बत को हासिल कर लो। कबीर मुस्कुराया तो उसकी आंखों में दुख मोती बनकर चमका था। आलम ने कबीर की मोहब्बत के नाम के अच्छे अंजाम की दुआ की थी। क्या है, उठ के क्यों आ गए? मोहसिन ने सीढ़ियों के पास खड़े सुमित को सिगरेट के कच लगाते देखकर कहा, इंतहाई बोरियत हो रही थी। व्हाट, इतना अच्छा मुजरा चल रहा था और तू बोर हो रहा था? मोहसिन आंखें फाड़े कह रहा था, यार तुझे पता है ना, मुझे इन मुजरों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा। मैं तुम्हारी खातिर आ गया था, इसमें मुंह बनाते होगा। तो मेरे खातिर नहीं आया, वो तो गुल की तबीयत खराब थी तो तुम आ गए, मैंने तुम्हारा इसके साथ प्लान था। मोहसिन ने हकीकत बताई, तुम जानते हो कि मैं अपने सामने अपने बाप को अहमियत नहीं देता, तो गुल को अहमियत देना तो बहुत दूर की बात है। मैं तो तुम्हारी खातिर यहाँ पे आया क्योंकि पाकिस्तान में मेरे पास फैमिली के नाम पे सिर्फ तुम ही हो। वो संजीदा हुआ था। चल झूठे, अगर तुझे मेरी इतनी परवाह होती तो मुझे भी नाथ भाई के कोठे पर लेके जाता। खुद तो भाई जगह पर जाता है और मुझे अपना पूरा शो करने के लिए इन गलियों में आना पड़ता है। क्या मैं अच्छी जगह जाने के काबिल नहीं? मोहसिन की जज्बाती रेटिंग उरूज पर थी। नहीं भाई, तू यहाँ के ही काबिल है। बाप तेरा मिनिस्टर है और तू मुझसे मदद मांग रहा है। वो मजाक उड़ाने वाली जुमला, तेरा बाप जितना अच्छा नहीं है ना, तेरे ही मजे हैं। अगर मैं गर्लफ्रेंड को लेकर गया और बाप कुछ ना बोला, मेरा बाप होता तो ठुड्डे मारकर घर से बाहर निकाल देता। मोहसिन के लहजे में अब की हसरत थी। अब हर कोई सुबिल लगारी जितना खुशकिस्मत तो नहीं होता ना। और दूसरी बात ये कि मेरे बाप को पता है कि इसके बिजनेस को संभालने वाला मैं हूँ, इसलिए वो ये सब बर्दाश्त करने पे मजबूर है। वो कंधे उचकाकर लापरवाही से बोला, काश मैं भी अखलौता होता, मेरे दो भाई और ना होते। मोहसिन अफसरदगी से बोला ना, हर कोई सुमित लगारी जैसा नहीं होता। इनफैक्ट कोई सुमित लगारी जैसा है ही नहीं। गहरी थी आंखों में बहुत गरूर था।
یہ تو सच मोहसिन के लहजे में हसरत दर आई थी। सुमित एक छा जाने वाली शख्सियत का मालिक था, गहरी थी आंखें जिनके अंदर ऐसी पुरस्कारियत पोशीदा थी जो सामने वाले को जकड़ लेती, गोरी रंगत, सियाह बाल, वर्जिशी जिस्म, जिधर जाता लोगों को अपना गुरविदा बना लेता। इनकी सोसाइटी की लड़कियां सुमित पे जान देती थी, लेकिन वो मारूशिदा था, हर किसी को मुंह नहीं लगाता था। शुरू में इसने कुछ गर्लफ्रेंड बनाई, लेकिन उनके नखरे उठाना उसके बस का बात नहीं थी, इसलिए गर्लफ्रेंड बनाना छोड़ दी। पिछले एक साल से इसका इंटरेस्ट बस नाथ की कोठी में मौजूद गुल पर था। तो एंजॉय कर, मैं घर जा रहा हूँ। इस रुमीसा लगारी को आज फिर से टफ टाइम दे रहा हूँ। मुलाजिम से कह रही थी क्या चाइनीज राइस बनाना। मैंने जाहिर से कहा कि अगर चाइनीज राइस बनाए तो तुम्हारी आंखें चाइनीज जैसी कर दूंगा। वो केका लगा कर बोला और हाथ हिलाता आगे बढ़ गया। अरिया ने रुदाबा के साथ पिछले सेल में वॉशिंग मशीन लगाई थी। जब निदा ने आकर उसे उसकी अम्मी के आने की इत्तला दी, उबी के कपड़ों के साथ खुशी खुशी माँ को मिलने चल दी। रुको, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? रुमीसा लगारी से दूर रहने का इशारा करते हुए नागवारी से बोली। वो कपड़े धो रही थी। वो शर्मिंदगी से बोली, तुम क्यों कपड़े धो रही थी? क्या मुलाजमा हुई इन लोगों की? रुमीसा लगारी तेज लहजे में बोली, वो दरअसल निदा का कल टेस्ट है ना, इसलिए मैंने सोचा कि रुदाबा आपी की कुछ हेल्प करवा दो। उसने घबरा कर बता दी। अरे रुमीसा, ये कैसी हो रुमीसा? निगत बेगम सहन में दाखिल होते हुए बोली, ये आप लोगों ने मेरी बेटी को मुलाजमा बनाया हुआ है। मैं आपको महीने के 50,000 इसलिए देती हूँ कि आप मेरी बेटी के साथ ये सलूक करें। रुमीसा लगारी गुस्से से बोली थी। निगत बेगम एकदम घबराई थी। अम्मी कोई बात नहीं, मैं भी यहीं रहती हूँ, अगर थोड़ा सा काम कर लिया तो क्या हो गया? उसे माँ का गुस्सा ठंडा करना चाहता। मुफ्त में नहीं रहती और महीने पैसे मिलते हैं इन लोगों को। अगर आप लोगों ने आइंदा रिया से कोई काम करवाया तो इसे मैं हॉस्टल भेज दूंगी, वहाँ खर्चा भी कम होगा और सुकून से भी रहेगी। रुमीसा लगाने वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा। अरे वो दरअसल निदा का हाथ जख्मी था, तो रिया ने मेरे मना करने के बावजूद रुदाबा की मदद करवा दी। तुम तो जानती हो कि इसे रुदाबा से कितना प्यार है, बस इसलिए तुम फिक्र ना करो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। रिया मेरे लिए रुदाबा और निदा से बढ़कर है, निगत बेगम ने खुशामदी लहजे में कहा था। निदा की चोट वाली बात सुनकर रुमीसा लगानी ने अप्रोच का रिया को देखा, जितने नजरें चुराई थी। तुम जैसी अहमक इस दुनिया में कोई नहीं है। निगत मोमानी के जाने के बाद रुमीसा लगारी ने अरिया की क्लास में, अब मैंने क्या किया? अब हर वक्त मुझे ही डांटती रहती हैं। अरिया मुंह फुलाकर बोली, ये जो अकल है ना, इसे कभी इस्तेमाल भी कर लिया करो, वरना जंग लग जाएगा इसमें। रुमीसा लगारी इसकी कुंटली पर उंगली रखकर बोली थी। अरिया ने कब्जी से माँ को देखा, जो इसे डांटने का कोई भी मौका हाथ से ही नहीं जाने देती थी। मैंने क्या तुम्हें इन लोगों की खिदमत के लिए यहाँ पे छोड़ा हुआ है? जब देखो इन लोगों का कोई ना कोई काम करती रहती हो। देखो तो हाथ नीले हो रहे हैं तुम्हारे। तेज लहजे में बोली, अम्मी ये तो नील लगा है इसलिए हाथ नीले हो रहे हैं, और ये लोग तो मुझे किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने देते, बल्कि मेरे भी काम कर देते हैं। अभी निदा का टेस्ट था तो मैंने खुद रुदाबा आपी से कहा कि मैं इनकी हेल्प करवा देती हूँ। उसने बताया, अगर ये बात है तो निगत ने झूठ क्यों बोला कि तुम इन लोगों के सामने मेरी हिमायत मत क्या करो? अगर वो तुम्हारे काम करती है तो कोई एहसान नहीं करती। हर महीने में जो 1 लाख देती हूँ ना, इनसे इनके घर का राशन भी आता है, तुम्हारे काम करना इनकी जिम्मेदारी। रुमीसा लगारी ने उससे बोली थी। उमानी ने इसलिए झूठ बोला क्योंकि सच सुन के आपने वावेला मचा देना था। वो माँ के रवैये पे अफसोस से सर हिलाकर बोली, अच्छा बस मेरे सामने इनकी हिमायत करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ और ये लोग तुम्हारे अपने। वो नागवारी से बोली, ऐसी बात नहीं है, और वैसे भी अम्मी लड़कियों को घर का काम आना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद लड़कियों को घर संभालना होता है। रिया दोनों हाथ उठाकर समझाने वाले अंदाज में बोली, ये बात भी यकीनन तुम्हारी मुमानी ने तुम्हारे जहन में डाली होगी, लेकिन वो ये भूल गई है कि तुम रुमीसा लगारी की बेटी हो। मजबूरी के तहत तुम यहाँ जरूर रह रही हो, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि मैं तुम्हारी शादी इस छोटे से मोहल्ले में करूंगी। तुम्हारी शादी तो मैं अपने स्टेटस के लोगों में करूंगी। रुमीसा लगारी निगत बेगम को चाय लाते देखकर इन्हें सुनाने के लिए ऊंची आवाज में बोली थी। ये बात सुनकर निगत बेगम शर्मिंदा हो गई। वैसे रुदाबा का ये रिश्ता वगैरह देखा है आप? रुमीसा लगारी ने चाय का कप उठाते हुए निगत बेगम से पूछा। वो कहती है कि वो अब शादी नहीं करेगी, लेकिन मैंने सोच लिया है कि अब उसकी शादी देखभाल कर अच्छी सी जगह पर ही करूंगी। निगत बेगम ने बताया, माफ करना भाभी, जिस तरह का तुम लोगों का स्टेटस है उस पर तलाक याफ्ता को बड़ी उम्र के रंडुए ही मिलते हैं। रुमीसा लगारी ने बगैर किसी लिहाज के कहा था। निगत बेगम के चेहरे पर तारीख से साया ले रहा था, जबकि रिया को माँ के अल्फाज बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे। पता नहीं क्यों अम्मी को दूसरों के बारे में ऐसी बातें करके क्या मिलता था। अम्मी आप सुनाए, अंकल ठीक है? अरिया ने मौजू बदलने के लिए पूछा। वो बिल्कुल ठीक है, जुबैर की कंपनी ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है, उस खुशी में वो इस सोमवार को पार्टी दे रहे हैं। मैं ड्राइवर भेजूंगी और इस दफा कोई बहाना नहीं सुनूंगी। रुमीसा लगारी ने कहा, अम्मी आप तो जानती हैं ना मैं किस वजह से वहाँ नहीं आती। उसने फौरन से पेशतर इनकार किया था। मैंने कह दिया ना कि मैं इस बार कोई इनकार नहीं सुनूंगी, तुमने जरूर आना है। ये कुछ पैसे रुदाबे के साथ जाकर अच्छा सा डिजाइनर ड्रेस ले आना। जब जाना हो तो मुझे बताना, मेरा ड्राइवर तुम दोनों को मार्केट ले जाएगा। मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं ही तुम्हें ले जाती। और तुमने पार्लर जाकर फेशियल भी करवाना है। वो 50,000 अरिया की तरफ बढ़ाते हुए बोली। अरिया के इनकार करने के बावजूद उन्होंने इसे पार्टी में आने का हुक्म दे दिया। और हाँ, अब इन पैसों से खुद खरीदारी करने
खुद खरीदारी करना, बांटने मत बैठ जाना। जाने से पहले रुमिसा लगानी निगत बेगम की तरफ देखते हुए अरिया से कहा। निगत बेगम मजीद शर्मिंदा हो गई। मानी, आप सुबह कह रही थी ना कि आपके पास पैसे खत्म हो गए, आपको 10,000 की जरूरत है, मामू को परसों तनख्वाह मिलेगी, आप ये पैसे रख लें। अरिया ने 10,000 इनकी तरफ बढ़ाकर कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने अपनी बहन से कहा है कि वो मुझे कुछ पैसे उधार दे दे। उन्होंने मना किया। मुमानी, प्लीज इस तरह का तकल्लुफ मत किया करें, आप ये पैसे रख लें वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। लेकिन तुम्हारी अम्मी, वो चचो बेटों मत बुलाऊंगी, इनको कौन बताएगा, बस आप ये रख लें। वो मुस्कुराकर बोली, जैसे ही तुम्हारे मामू की तनख्वाह आएगी मैं फौरन तुम्हें लौटा दूंगी। निगत बेगम ने पैसे लेते हुए कहा। आर्या ने असाबत में सर हिलाया था। वो जानती थी कि मुमानी को इससे पैसे लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो बस मजबूरी के तहत उससे पैसे मांगती थी, इसे लौटाने की कोशिश भी करती थी, लेकिन वो हमेशा ही लेने से इनकार कर देती थी। जब अब इससे इतनी मोहब्बत करती हैं, इसका इतना ख्याल रखती हैं, इसका भी तो फर्ज था कि वो इनका ख्याल रखे। सुना है इस वीकेंड पे तेरे घर पार्टी, मुदस्सिर ने सिगरेट का घेरा कश लेते सुमित से पूछा। तुम्हें बड़ी खबरें हैं मेरे घर की। वो धुआं छोड़ते हुए मुदस्सिर को तेज नजर से देखते बोला, मशहूर बिजनेसमैन जुबैर लगारी के घर पार्टी हो और लोगों को खबर ना, ये तो नहीं हो सकता ना। वो मुदस्सिर हंसकर बोला, पता है अब दावतनामा दे रहा है तू हमें। मोहसिन ने कुर्सी के साथ टेक लगाते हुए कहा, मैं खुद नहीं जा रहा तो तुम लोगों को तो बुलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो टांग पे टांग जमा कर बोला, तुम क्यों नहीं जा रहे। मुदस्सिर हैरत से बोला, डेट और इनकी वाइफ के जाने वाले होंगे, इंतहा की बोरिंग पार्टी होगी। सुमित ने कहा, पर मैंने तो सुना था कि शोबिस के सितारे और सियासतदान वगैरह भी इनवाइटेड है। मुदस्सिर के पास तो सारी मालूमात होंगी, पर मैंने नहीं जाना, इसने पूछा नहीं कि कौन कौन आएंगे। और तुम अब इस टॉपिक को प्लीज बंद कर दो। सुमित बेदारी से बोला था, यार मुदस्सिर, तू बड़ा खुद गर्ज है, कभी अपने घर बुलाया भी नहीं। मैंने तो सुना है कि तुम्हारा घर पूरा महल है। मुदस्सिर ने नाराजगी दिखाई, मुझे दोस्तियां घर तक ले जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। सुमित नाराज संजीदगी से बोला, अच्छा बस ना मुदस्सिर, तुम भी एक बात के पीछे ही पड़ जाते हो। मोहसिन ने सुमित का मूड बिगड़ते देखकर कहा, अच्छा भाई मैं तो चलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम है। सुमित कुर्सी से उठते हुए बोला और पार्किंग की तरफ बढ़ गया। सुमित कितना अजीब है ना, खुद अभी मेरे घर में बैठा था और मुझे कह रहा है कि इसे दोस्तियां घर तक ले जाना पसंद नहीं। मुदस्सिर नागवारी से बोला, तुम जानते हो ना यार, उसकी यही नेचर है, कभी अच्छे से बात करता है और कभी जाते जाते रूड हो जाता है। मोहसिन ने उसे समझाना चाहा, वो सुमित का बचपन का दोस्त था, तुम इसकी ऐसी नेचर बर्दाश्त करो, मुझे कोई मजबूरी नहीं है। अगर आइंदा ऐसी बात की तो मेरा उससे फड्डा हो जाता। मुदस्सिर उंगली उठाकर बोला था, अच्छा बस ना यार, छोड़ गुस्सा, चल चाय पिला। मोहसिन ने कहा। वो कबीर के ड्राइंग रूम में बैठा चाय पी रहा था जब बाहर से आती नुकसानी आवाज पे उसके कान खड़े हो गए। वो सोफी तक अरिया की आवाज थी। कब मेज पे रख के वो दरवाजे तक आया, जरा सा बाहर जगह सामने वो दुश्मनी जहाँ कबीर की छोटी बहन मारिया के साथ खड़ी बातें कर रही थी। एकदम से अरिया ने केका लगाया तो आलिम को लगा ये तो उसके इर्द गिर्द जलतरंग बज उठी हूँ। उसका दिल कर रहा था कि वो बाहर जाए, लेकिन इस तरह बाहर किसी वजह के एरिया के सामने बाहर निकलना उसे बहुत अजीब लगा। उसने गर्दन मोड़कर मेज पे पड़ी प्यारी को देखा और प्यारी पकड़कर बाहर निकल आया। कबीर अपने कमरे से कोई चीज लेने गया हुआ था। अरे आलम भाई, आप क्यों कप ले आए, मुझे कहते मैं लेकर आ जाती। मारिया उसे देखकर बोली। मारिया की बात सुनकर रैया ने अपना रुख नहीं फेरा था। उसे लगता था कि आलम की नजरें रोज उसका काली जाते हुए पीछा करती हैं, लेकिन हो सकता है कि ये उसकी गलतफहमी हो। एक और कप पीने को दिल कर रहा था तो बस आलम ने कहा, मारिया चाय लेने चली गई तो रिया को वहाँ खड़े होना बहुत ही अजीब लगा। वो भी मारिया के पीछे जाने का सोचने लगी। और आप कैसी हैं? आलम ने पहल की। ठीक हूँ, उसने संजीदा लहजे में जवाब दिया। जब कोई खैर खैरियत पूछे तो जौबन उसकी भी खैरियत पूछती हैं, उसने जताया था। आप कैसे हैं? अरिया ने तकल्लुफ से कहा। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और सुनाए? वो ऐसे बोला जैसे इनके दरमियान बहुत बेतकल्लुफी हो। कुछ नहीं, उसने संजीदा लहजे में कहा और किचन की तरफ चल दी। शिट, लगता है कि माइंड कर गई। मैं भी ना, क्या जरूरत थी यूँ बात करने की। वो माथे पर हाथ रखकर बोला, तुम इधर क्यों खड़े हो? कबीर उसे अपने कमरे से निकलते देखकर बोला। वो मारिया को चाय लाने का कहा तो किचन से निकलती मारिया को देखकर बोला, तुम आओगी ना पार्टी में? रुपये लगा लेना। नाश्ते की मेज पे सुरमी ट्रैकसूट में मुलविस सुमी से पूछा। नहीं, वो जूस पीते बोला। इसका इनकार सुनकर रुमीसा लगारी मुतमिन हो गई। वो नहीं आ रहा था तो हरिया सुकून से पार्टी अटेंड कर सकती थी। तुम्हें जरूर पार्टी में शिरकत करनी है। कल को तुमने मेरा बिजनेस संभालना है, तुम्हें भी मालूम होना चाहिए कि कौन से लोग हमारे दोस्त हैं और कौन से हरी। दुबे लगारी ने कहा, मुझे ना तो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है और ना ही आपकी इन सो कॉल्ड पार्टीज में। वो बेदारी से बोला था। और अगर वो नहीं आना चाह रहा तो आप मजबूर मत करें ना। रुमीसा लगारी ने बीच में मदाखलत की थी। वैसे स्टेप मदर, आप क्यों नहीं चाहती कि मैं पार्टी में हूँ? आंखें सुखेर कर बोला, मुझे क्या लगे कि तुम आओ या ना आओ। रुमीसा लगारी कर बेपरवाही से बोली, मैं अभी तुमसे यही कहूँगा कि तुम पार्टी में जरूर आना। सुमेर लगारी ने सुमित से कहा। सुमित खामोशी से नाश्ता करते हुए रुमीसा का भगौर जायजा लेने लगा, जो कुछ बेचैन लग रही थी। आखिर क्या वजह है कि उसे पार्टी में नहीं देखना चाहती? जो भी वजह थी वो मालूम करके ही रहेगा। वो जल्दी नाश्ता करके उठ गया और अपने कमरे में जाने के बजाय डाइनिंग रूम के दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। जब वो मना कर रहा है तो बार बार कहने की क्या जरूरत थी आपको? रुमीसा झंझला कर बोली थी। तुम्हें उसके आने से क्या मसला है? तुम्हें लगा रही हैरत से बोले, मिसेस कमाल से मैंने अरिया का जिक्र किया था, वो भी इस पार्टी में आ रही है।
तो मैंने अरिया को भी बुलाया, अगर तुम इस पार्टी में हुआ तो अरिया को देखकर कोई हंगामा न खड़ा कर दे। जुबैर लगा रुमीसा जुबैर के दोस्त की फैमिली का जिक्र करते हुए बोली थी। वो मना कर चुका है, इसलिए शायद ना आए, अगर आया भी तो मैं इसे संभाल लूंगा। जुबैर लगा रही ने उन्हें तसल्ली दी। ओह, तो अरिया नौमान आ रही है और उसके लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है, अब तो मेरा आना बनता है भाई। सुमित की आंखों में अजीब सी चमक थी। रुदाबा निदा के मजबूर करने पर कबीर के घर आई थी। निदा ने कहा था कि हिना मैं के आई हुई है तो वो लोग मिलने आ जाएं। अरिया टेस्ट याद करी थी, इसलिए उसके साथ नहीं आई। दरवाजा कबीर नहीं खोला। रुदाबा ने एकदम रुक फेरा था। कबीर शर्मिंदा था, साइड पे हो गया। कैसे हैं कबीर भाई आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग अंदर आ जाएं। भाई, कबीर रुदाबा को देखकर बोला। उसकी आंखों में